Hello students, welcome back. Today we'll start with our next chapter, that is An Astrologer's Day. Okay. Now, a story takeaway or about the theme. The story underscores that fate can reveal unexpected truths, offering redemption and challenging our perceptions, showing that even deep guilt can be confronted and resolved through unforeseen twist of destiny. इस स्टोरी के थीम के अराउंड रिवॉल्व कर रही है कि फेट जो है, आपकी जो फेथ है, वो कभी कभी अनएक्सपेक्टेड ट्रूथ्स भी रिवील करती है और आपको एक मौका देती है रिडेम्पशन का, और हमारे परसेप्शंस को भी चैलेंज करती है कि हम चीज़ों को किस तरीके से देखते हैं। शोइंग दैट इवन डीप गिल्ट, कि आपके अंदर जो डीप गिल्ट है उसको भी आप कन्फ्रंट कर सकते हो और रिजॉल्व कर सकते हो थ्रू अनफोर्सीन ट्विस्ट ऑफ द डेस्टिनी। Now let's start with our chapter. Punctually the midday he opened his bag and spread out his professional equipment, which consisted of a dozen cowrie shells, a square of cloth with obscure mystic charts on it, a notebook, and a bundle of Palmyra writing. His forehead was resplendent with sacred ash and vermilion, and his eyes sparkled with a sharp abnormal gleam, which was really an outcome of a continual searching look for customers, by which his simple clients took to be a prophetic light and felt comforted. अब क्या हुआ, मिड डे के दौरान उसने अपना नॉर्मल रूटीन फॉलो करा, अपना बैग खोला और उसमें से चीजें निकालना शुरू करा, कुछ अपने इक्विपमेंट्स, कुछ शेल्स, कोई एक स्क्वायर क्लोथ निकाला जिस पर अलग अलग चार्ट्स हैं, नोटबुक और कुछ राइटिंग। ठीक है, उसने अपने माथे पर ऐश लगा रखी थी और उसकी आंखें चमक रही थी। ठीक है, एक ऐसा लुक था कि कस्टमर्स आकर उस पर बिलीव करें, ये माने कि हाँ वो एक बहुत अच्छा आदमी, उसे बहुत ज्ञान है, और उसके सामने वो कंफर्ट फील करें। The power of his eyes was considerably enhanced by their position, placed as they were between the painted forehead and the dark whiskers which streamed down his cheeks. Even the half-wit eyes could sparkle in such a setting. To crown the effort, he wound a saffron-colored turban around his head. This color scheme never failed. People were attracted to him as bees are attracted to cosmos or dahlia stars. अब क्या हुआ, उसका जो ये आउटफिट था, उसका जो ये पूरा लुक था, वो काफी अच्छा था। जैसे उसकी आईज बहुत स्पार्कल कर रही हैं, वो अलग से ही दिखती थी। क्यों? क्योंकि उसके माथे के बीचों बीच, पेंटेड माथे के बीचों बीच वो थी, तो वो अलग ही शाइन करती थी। उसने अपने लुक में इतने एफर्ट्स डाले थे कि उसने एक सैफ्रॉन कलर का टर्बन, एक पगड़ी सी पहन रखी थी, जो कि कलर कभी भी फेल नहीं करता। क्यों? इस कलर से लोग उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं, जैसे कि मधुमक्खियां फूलों की तरफ खींची जाती हैं। He sat under the boughs of a spreading tamarind tree, which flanked a path running through the town hall park. It was a remarkable place in many ways. A surging crowd was always moving up and down this narrow road, morning till night. उसने अपना रास्ता टाउन हॉल पार्क के पास में ही लगाया। ठीक है, वहां पर उसने अपना सामान रखा एक पेड़ के नीचे, और वो एक काफी अच्छी जगह थी उसके काम के लिए। क्यों? क्योंकि वहां पर सुबह रात हमेशा भीड़ रहती थी। A variety of trades and occupations was represented all along this way. Medicine sellers, seller of stolen hardware and junk, magician, and above all, an auctioneer of cheap clothes who cheated enough in all day to attract the whole town. अब वहां पर बहुत सारे अलग अलग ट्रेडर्स और ऑक्यूपेशंस देखने को मिलते थे, जैसे कि मेडिसिन बेचने के लिए, हार्डवेयर, चुराए हुए हार्डवेयर और जंक को बेचने के लिए,
जादूगर और ऑक्शनियर जो कि चीप कपड़ों को अच्छे दाम में बेचता था। Next to him came a vendor of fried groundnut who gave his ware a fancy name each day, calling it Bombay ice cream one day, and on the next Delhi almond, and on the third day Raja delicacy, and so on and so forth, and people flocked to him. और उसी के पास एक फ्राउंड ग्राउंडनट का वेंडर आया जो हमेशा हर रोज अपनी कार्ट को एक नया नाम देता था। बॉम्बे आइसक्रीम, दिल्ली आलमंड, राजा डेलीकेसी, और ऐसे हर दिन अलग अलग नाम। A considerable portion of his crowd tallied before the astrologer too. और उसके पास बहुत सारी भीड़ आती थी। उसमें से एक अच्छी भीड़ एस्ट्रोलॉजर के पास भी आती थी। The astrologer transacted his business by the light of a flare which crackled and smoked above the groundnut heap nearby. Half the enchantment of the place was due to the fact that it did not have the benefit of municipal lightning. इतना ज्यादा वहां पे इसलिए भी होता था क्योंकि वहां पर कोई भी म्युनिसिपल लाइटनिंग की बेनिफिट नहीं मिलती थी। द प्लेस वॉज लिट बाय शॉप लाइट्स। वहां पर वो पूरी जगह सिर्फ दुकानों पर लगी हुई लाइट्स की वजह से चमकती थी। One or two had hissing gas lights, some had naked flares stuck on poles, some were lit up by old cycle lamps, and one or two, like the astrologers, managed without light of their own. बहुत से लोग अपनी गैस लाइट चलाते थे, कुछ ने ठीक है पोल्स पर लाइट्स लगा रखी थी, ओल्ड साइकिल लैंप्स थे, और कुछ लोग जैसे कि एस्ट्रोलॉजर बिना किसी अपनी लाइट के मैनेज करते थे। It was a bewildering crisscross of light rays and moving shadows. This suited the astrologer very well for the simple reason that he had not in the least intended to be an astrologer when he began life, and he knew no more of what was going to happen to himself next minute. एस्ट्रोलॉजर के लिए बहुत सही था। क्यों? क्योंकि उसने कभी भी अपनी लाइफ में नहीं सोचा था कि वो एक एस्ट्रोलॉजर की तरह अपनी लाइफ को बिताएगा, एक एस्ट्रोलॉजर बनेगा, और उसे अभी भी नहीं पता था कि अगले मिनट क्या हो जाएगा। He was as much a stranger to the stars as were his innocent customers. उसे भी सितारों के बारे में कुछ नहीं पता था जैसे उसके कस्टमर्स को नहीं पता था। Yet he said things which pleased and astonished everyone. That was more a matter of study, practice, and shrewd guesswork. All the same, it was as much an honest man's labor as any other, and he deserved the wages he carried home at the end of the day. उसे सितारों के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन फिर भी वो ऐसी चीजें कहता था, इतनी अच्छी चीजें कहता था कि जो कस्टमर्स होते थे वो उससे बहुत खुश हो जाते थे। और ये सब वो कैसे कर पाता था? उसने पढ़ाई करी, प्रैक्टिस करी, और वो बाकी गैस करता था। ये सब सेम था जैसे कि एक ऑनेस्ट आदमी काम करता है, लेबर करता है, ऐसे ही वो भी करता था, और आखिर में दिन के खत्म होने पर जो वो पैसे अपने घर लेके जाता था वो डिजर्व करता था। He had left his village without any previous thought or plan. वो उसने अपने गांव को छोड़ दिया था बिना किसी प्लानिंग के। If he had continued there, he would have carried on the work of his forefathers, namely tilling the land, living, marrying, and ripening in his cornfield and ancestral home. अगर वो वहां पर रहता तो वो अपने पूर्वजों की लेगेसी को कैरी कर पाता, उनके काम को कैरी कर पाता। क्या कि जमीन का ध्यान रखना, जीना, शादी करना, अपने कॉर्न फील्ड पे ध्यान रखना, और अपने घर में रहना, अपने एंसेस्ट्रल होम में रहना। But that was not to be. He had to leave home without telling anyone, and he could not rest till he left it behind a couple of 100 miles. To a villager, it is a great deal, as if an ocean flowed between. लेकिन वो वहां पर नहीं रुक सकता था, उसे अपना घर छोड़ के जाना पड़ा बिना किसी को बताए, और उसे कम से कम वहां से 200 मील दूर तो जाना था जब तक वो
इससे पहले कि वो आराम करता। He had a working analysis of mankind's trouble, marriage, money, and the tangles of human ties. Long practice has sharpened his perception. Within 5 minutes, he understood what was wrong. उसने अपना मैनकाइंड ट्रबल्स पर एनालिसिस करना का काम किया, जैसे कि शादी, पैसे और ह्यूमन टाइज, ह्यूमन रिलेशंस। ठीक है, और इतनी लंबी प्रैक्टिस के बाद उसका जो परसेप्शन था वो बहुत अच्छा हो गया। वो 5 मिनट में ही बता सकता था कि क्या गलत है, क्या गड़बड़ है। He charged 3 pies per question, never opened his mouth till the other had spoken for at least 10 minutes, which provided him with enough stuff for a dozen answers and advices. वो क्या करता था, वो हर एक क्वेश्चन के लिए 3 पाए चार्ज करता था, और वो अपना मुंह तब तक नहीं खोलता था जब तक सामने वाला कम से कम 10 मिनट तक अपनी बात ना कर ले, जिससे उसे कुछ क्वेश्चंस का आंसर्स और एडवाइसेस देने में हेल्प मिल जाती थी। When he told the person before him, gazing at his palm, in many ways you are not getting the fullest results of your efforts, 9 out of 10 were disposed to agree with him. Or he questioned, is there any woman in your family, maybe even a distant relative who is not well disposed towards you? Or he gave an analysis of character. Most of your troubles are due to your nature. How can you be otherwise with Saturn where he is? You have an impascious nature and a rough exterior. This endeared him to their hearts immediately, for even the mildest of us loves to think that he has a forbidding exterior. अब क्या हुआ, उस पहले तो वो सामने वाले की बात सुनता था कि उसे इतना अंदाजा हो जाए कि आखिर दिक्कत क्या है और वो कैसे सवाल पूछेगा, मुझे कैसे जवाब देने हैं, क्या एडवाइस देनी है। तो जब वो सामने वाले का हाथ देखता था, ठीक है, तो वो कैसी बातें करता था कि बहुत से तरीकों से तुम जो एफर्ट्स डाल रहे हो उसका रिजल्ट तुम्हें नहीं मिल पा रहा है। 9 out of 10 टाइम्स तुम्हारे जो एफर्ट्स है वो सही रिजल्ट नहीं दे पा रहे। या फिर वो क्वेश्चन करने लगता था कि क्या तुम्हारी फैमिली में कोई ऐसी वुमेन है, चाहे वो डिस्टेंट रिलेटिव ही हो, जो तुम्हारे प्रति अच्छी फीलिंग्स नहीं रखती, इज नॉट वेल डिस्पोज टूवर्ड्स यू। और कभी वो उनके कैरेक्टर के लिए एनालिसिस देना शुरू कर देता कि तुम्हारी ज्यादातर जो परेशानियां हैं तुम्हारे नेचर की वजह से हैं। ठीक है, तुम्हारा नेचर ऐसा है, तुम्हारा एक्सटीरियर इतना रफ है। और ये सब सुन के वो लोगों के दिलों पे जल्दी से काम करना शुरू कर देता था। लोग ये सोचने लगते थे कि हाँ वो बहुत अच्छा है। The nut vendor blew out his flare and rose to go home. This was a signal for the astrologer to bundle up too, since it left him in darkness except for a little shaft of green light which strayed in from somewhere and touched the ground before him. अब वेंडर जो था, जो नट वेंडर था, उसके पास में उसने अपनी लाइट को बुझा दिया और घर जाने के लिए चलने लगा। एस्ट्रोलॉजर के लिए यही सिग्नल था कि अब उसे भी घर जाना है। क्यों? क्योंकि अंधेरे में वो अपना काम नहीं कर सकता था और उसके पास अपनी कोई लाइट नहीं थी, कहीं से बस हल्की सी ग्रीन लाइट आती रहती थी। He picked up his cowrie shells and paraphernalia and was putting them back into his bag when the green shaft of light was blotted out. He looked up and saw a man standing before him. He sensed a possible client and said, "You look so careworn. It will do you good to sit down for a while and chat with me." तो उसने क्या करा, वो अपना सामान उठा के अपने बैग में पैक करने लगा। तभी उसे वो ग्रीन लाइट अचानक से जलती हुई दिखी। उसने ऊपर देखा और एक आदमी खड़ा था उसके सामने। उसने सेंस किया कि ये शायद मेरा एक पॉसिबल क्लाइंट हो सकता है। तो उसने कहा था कि यू लुक सो केयर वॉन, तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि अगर तुम बैठो और मेरे साथ कुछ देर बात करो। The other grumbled some deeply vaguely. The astrologer pressed his invitation, whereupon the other
thrust his palm under his nose, saying, "You call yourself an astrologer?" The astrologer felt challenged and said, tilting his other palm towards the green shaft of light, "Yours is a nature." "Oh, stop that," the other said. "Tell me something worthwhile." तो अब दूसरा जो था, वो जो आदमी खड़ा था, वो अपने आप में कुछ बोलने लगा। तो एस्ट्रोलॉजर अपना जो इनविटेशन था उसे और प्रेस करने लगा कि वो क्लाइंट उससे बात करे। तो उसने क्या करा, जो आदमी खड़ा था उसने अपना पाम एस्ट्रोलॉजर को दिया कि तुम अपने आप को एस्ट्रोलॉजर कहते हो। अब एस्ट्रोलॉजर को ऐसा लगा कि उसे चैलेंज किया जा रहा है, तो उसने दूसरे के पाम को टिल्ट करते हुए देखा लाइट की तरफ और कहा कि तुम्हारा नेचर। तभी वो आदमी कहता है कि रुको, स्टॉप दैट, मुझे कुछ ऐसा बताओ जो काम का हो। Our friend felt piqued. "I charge only 3 pies per question, and what you get ought to be good enough for your money." At this, the other withdrew his arm, took out an anna, and flung it out to him, saying, "I have some questions to ask. If I prove you are bluffing, you must return that anna to me with interest." अब जो एस्ट्रोलॉजर था उसका इंटरेस्ट पीक हुआ। उसने कहा कि मैं हर क्वेश्चन के लिए 3 पाई चार्ज करता हूँ, और जो भी मैं तुम्हें बताऊंगा वो तुम्हारे ये मनी वर्थ होगा, तुम्हारे पैसे के लायक होगा। तो इस पर जो आदमी था उसने अपना हाथ एस्ट्रोलॉजर से लिया, अपनी जेब से एक अन्ना निकाला और उसकी तरफ देते हुए कहा कि मेरे पास कुछ क्वेश्चन है तुमसे पूछने के लिए। अगर मैंने प्रूव करा कि तुम ब्लफ कर रहे हो, तो तुम्हें मुझे मेरे पैसे इंटरेस्ट के साथ वापस करने होंगे। If you find my answer satisfactory, will you give me 5 rupees? अगर तुम्हें मेरे आंसर्स बिल्कुल सही लगे, सेटिस्फेक्शन मिला, तो क्या मुझे 5 रुपए दोगे? नो, आदमी ने कहा कि नहीं। और विल यू गिव मी 8 अन्नास, या फिर तुम मुझे 8 अन्ने दोगे? All right, provided you give me twice as much if you were wrong, said the stranger. तो स्ट्रेंजर ने कहा कि ठीक है, अगर तुम गलत निकले और तुम मुझे मेरे पैसों के ट्वाइस अमाउंट दो, तो मैं भी ऐसा ही करूंगा। This pact was accepted after a little further argument. The astrologer sent up a prayer to heaven as the other lit a cheroot. The astrologer got a glimpse of his face by the matchlight. अब क्या हुआ, अब इस पर दोनों ने एग्री करा कि हाँ ठीक है, और थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट और हुआ। एस्ट्रोलॉजर प्रे करने लगा भगवान से कि सब सही हो जाए। तभी एस्ट्रोलॉजर स्ट्रेंजर का फेस देखता है मैच लाइट में। देयर वॉज अ पॉज एज कार्स hooted on the roads. Jutka drivers swore at their horses, and the babble of the crowd agitated in the semi-darkness of the park. The other sat down, ruthlessly sucking his cheroot. अब दूसरा जो था वो अपनी शेरूट सक करते बैठने लगा, और जब उसने ऊपर देखा स्ट्रेंजर को, उसका चेहरा देखा, तो मानो सारी चीजें रुक गईं। द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट वेरी अनकंफर्टेबल, एस्ट्रोलॉजर को अनकंफर्टेबल फील होने लगा। Here, take your Anna back. I'm not used to such challenges. It is late for me today. He made preparations to bundle up. एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि ये रहा तुम्हारा आने, तुम्हारे पैसे। मैं ऐसे चैलेंजेस नहीं करता, और वैसे ही मुझे आज देरी हो रही है, और वो अपने सामान को पैक करने लगा। द अदर हैड हिज रिस्ट एंड सेड, दूसरे ने उसकी कलाई पकड़ ली और कहा, "You can't get out of it now. You dragged me in while I was passing." The astrologer shivered in his grip, and his voice shook and became faint. "Leave me today, I will speak to you tomorrow." तो स्ट्रेंजर ने उसकी रिस्ट पकड़ के कहा कि तुम अब इससे बाहर नहीं निकल सकते, तुम मुझे यहाँ खींच के लेके आए हो जब मैं यहाँ से गुजर रहा था। इस बात पर एस्ट्रोलॉजर कांपने लगा उसकी ग्रिप में, और वो बहुत धीमी आवाज में बोला
कि आज नहीं, हम कल बात करेंगे, आई विल स्पीक टू यू टुमारो। द अदर थ्रस्ट हिज palm in his face and said, challenge is challenge, go on. The astrologer proceeded with his throat drying up. अब क्या हुआ, जो दूसरा आदमी था, स्ट्रेंजर था, उसने अपना हाथ एस्ट्रोलॉजर के फेस के सामने रख दिया और कहा कि ये चैलेंज चैलेंज होता है, अब अपना काम करो। तो एस्ट्रोलॉजर ने अपना काम करना शुरू करा। उसने कहा, देयर इज अ वुमन, एक औरत है। स्टॉप सेड द अदर, उसने कहा कि रुको, आई डोंट वांट ऑल दैट, शैल आई सक्सीड इन माय प्रेजेंट सर्च और नॉट, आंसर दिस एंड गो, अदरवाइज आई विल लेट यू गो टिल यू disgorge all your coins। तो उसने कहा स्ट्रेंजर ने कि मुझे ये सब नहीं जानना, मुझे ये जानना है कि मैं अपनी सर्च में कामयाब होऊंगा या नहीं, इसका जवाब दो और जाओ, वरना मैं तुमसे तुम्हारे सारे कॉइन्स निकलवा लूंगा। द एस्ट्रोलॉजर मटर्ड अ फ्यू incantations and replied, all right, I will speak. But will you give me a rupee if what I say is convincing? Otherwise, I will not open my mouth and you may do what you like. तो एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि ठीक है, मैं बोलता हूँ, लेकिन अगर जो मैं आंसर दूंगा अगर तुम्हें वो कन्विंसिंग लगा तो क्या तुम मुझे 1 रुपए दोगे, वरना मैं अपना मुंह नहीं खोलूंगा और तुम्हें जो करना है तुम वो कर सकते हो। After a good deal of haggling, the other agreed. The astrologer said, you were left for dead. Am I right? Tell me more. तो कुछ देर आगे पीछे करने के बाद वो अग्री कर गया। एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिया गया था, क्या मैं सही हूँ? स्ट्रेंजर ने कहा कि मुझे और बताओ। A knife was passed to you once, said the astrologer. एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि तुम्हें एक बार चाकू मारा गया था। गुड फेलो, ही बेयर्ड हिज चेस्ट टू शो द स्कार, व्हाट एल्स? स्ट्रेंजर ने कहा कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, और फिर वो अपना निशान दिखाता है चाकू का, और क्या? एंड देन यू वर पुश्ड इनटू अ वेल नियर बाय इन द फील्ड, यू वर लेफ्ट फॉर डेड। एस्ट्रोलॉजर कहता उसके बाद तुम्हें पास के ही फील्ड के कुएं में धकेल दिया गया था और तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिया था। I should have been dead if some passers by had not chanced to peep into the well, exclaimed the other, overwhelmed by the enthusiasm. When shall I get at him? He asked, clenching his fist. तो जो स्ट्रेंजर था वो कहने लगा कि मैं मर जाता अगर कोई पासर बाई उस कुएं में ना झांकता। तो वो कहता है कि मैं उसे कब पकड़ूंगा, जिसने मुझे मारा मैं उसे कब पकड़ सकता हूँ, और इस बात पर वो अपनी फिस्ट को क्लेंच करने लगा। इन द नेक्स्ट वर्ल्ड, आंसर्ड द एस्ट्रोलॉजर, he died 4 months ago in a far off town. You will never see any more of him. The other groaned. On hearing it, the astrologer proceeded. उसने कहा कि अगली दुनिया में तुम्हें वो मिलेगा। एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि अगली दुनिया में तुम्हें वो मिलेगा। 4 महीने पहले किसी दूर शहर में उसकी डेथ हो गई, अब तुम्हें वो दोबारा से देखने को नहीं मिलेगा। दूसरे को सुनकर ये अच्छा नहीं लगा और एस्ट्रोलॉजर आगे बात करने लगा। गुरु नायक, यू नो माई नेम, द अदर सेड, टेकन अबैक। तो उसने एक नाम लिया एस्ट्रोलॉजर ने, गुरु नायक, और स्ट्रेंजर ने कहा कि तुम्हें मेरा नाम पता है? As I know all other things, Guru Nayak, listen carefully to what I have to say. Your village is 2 days' journey due north of this town. Take the next train and be gone. I see once again great danger to your life if you go from home. He took out a pinch of sacred ash and held it to him. Rub it on your forehead and go home. Never travel southward again, and you will live to be 100. तो एस्ट्रोलॉजर कहता है कि जैसे मैं बाकी सब चीजों को जानता हूँ वैसे ही मैं ये भी जानता हूँ, तो गुरु नायक मेरी बात को ध्यान से सुनना।
तुम्हारा विलेज यहाँ से 2 दिन की दूरी पर है, 2 दिन की जर्नी दूरी पर है, नॉर्थ में, टाउन के नॉर्थ में। तो अगली ही ट्रेन पकड़ो और यहाँ से चले जाओ। मुझे तुम्हारी लाइफ में एक और डेंजर दिख रहा है अगर तुम अपने घर से दूर रहे। उसके बाद एस्ट्रोलॉजर अपने पास से एक पिंच ऑफ ऐश निकालता है और उसे दे देता है। कहता है कि इसे अपने माथे पर लगा लो और घर चले जाओ, और कभी भी साउथ वर्ल्ड ट्रैवल मत करना, और तुम अपनी एक अच्छी लंबी जिंदगी, 100 साल की जिंदगी जियोगे। वाई शुड आई लीव होम अगेन? मैं अपना घर दोबारा क्यों छोड़ूं? The other said reflectively, I was only going away now and then to look for him and to choke out his life if I met him. He shook his head regretfully. He has escaped my hints. I hope at least he died as he deserved. Yes, said the astrologer, he was crushed under a lorry. The other looked gratified to hear. तो अब स्ट्रेंजर कहने लगा कि मैं भला घर क्यों चला जाऊं? मैं घर से निकला हूं ताकि मैं उसे ढूंढ सकूं और उसे मिलने पर उसे मार सकूं, जैसे उसने उसे मारने की कोशिश करी। वो अपना सर हिलाने लगता है। वो मेरे हाथों से बच के निकल गया। एटलीस्ट आई होप कि वो जिस तरीके से मरा वो उसे डिजर्व करता हो। तो एस्ट्रोलॉजर कहता है कि हाँ, उसे एक लॉरी क्रश करके चली गई। और ये सुन के सामने जो बैठा स्ट्रेंजर होता है उसे बहुत अच्छा लगता है। The place was deserted by the time the astrologer picked up his articles and put them into his bag. The green chef was also gone, leaving the place in darkness and silence. The stranger has gone off into the night after giving the astrologer a handful of coins. अब जो वो जगह थी वो फिर से अंधेरे में घिर गई थी जब एस्ट्रोलॉजर अपने सामान उठाकर वापस जाने की तैयारी करने लगा। वो स्ट्रेंजर भी वहां से जा चुका था और अब वहां पर सिर्फ अंधेरा और शांति थी। और वो स्ट्रेंजर उस रात में एस्ट्रोलॉजर के लिए बहुत सारे कॉइन्स भी छोड़कर गया। It was nearly midnight when the astrologer reached home. His wife was waiting for him at the door and demanded an explanation. He flung the coins at her and said, "Count them, one man gave all that." अब जब तक एस्ट्रोलॉजर घर वापस पहुंचा तब तक आधी रात हो चुकी थी और उसकी वाइफ दरवाजे पर उसका वेट कर रही थी। उसने पूछा कि इतनी देर क्यों लगी? तो एस्ट्रोलॉजर ने उसको सारे कॉइन्स देते हुए कहा कि इनको गिनो, एक आदमी ने मुझे ये सब दिए हैं। 12.5 anna, he said, counting. He was overjoyed. I can buy some jaggery and coconut tomorrow. The child has been asking for sweets for so many days now. I will prepare some nice stuff for her. तो वाइफ काउंट करती है और कहती है कि ये 12.5 अन्ना है, और वो बहुत खुश हो जाती, कहती है कि मैं कल जाकर गुड़ और नारियल खरीद के लाऊंगी और बच्चे के लिए कुछ मिठाई बनाऊंगी, और क्योंकि वो बहुत दिन से कह रही थी और मैं उसके लिए कुछ अच्छा बनाऊंगी। The swine has cheated me. He promised me a rupee, said the astrologer. She looked up at him. You look worried. What is wrong? Nothing. तो एस्ट्रोलॉजर कहने लगता है कि उसने मुझे चीट किया। उसने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो मुझे 1 रुपया देगा। उसके बाद उसकी वाइफ एस्ट्रोलॉजर को देखते हुए कहती है कि तुम कुछ चिंता में लग रहे हो, क्या हुआ? एस्ट्रोलॉजर कहता है कि कुछ नहीं। आफ्टर डिनर, सिटिंग ऑन द पायल, he told her, "Do you know, a great load is gone from me today. I thought I had the blood of a man on my hands all these years. That was the reason why I ran away from home, settled here and married you. He is alive." खाना खाने के बाद वो दोनों बैठे होते हैं और एस्ट्रोलॉजर अपनी वाइफ को कहता है कि मेरे ऊपर से एक बहुत बड़ा बोझ आज उतर गया। मैंने सोचा था कि मैंने हाथों किसी का खून हो गया है, इसीलिए मैं इतने सालों से यहाँ पर हूँ, अपने घर से भाग के आया, यहाँ पर सेटल हुआ और तुमसे शादी करी, लेकिन वो आदमी अभी भी जिंदा है।
ही गैस्प्ड, यू ट्राइड टू किल। तो उसकी वाइफ पूछती है कि तुमने किसी को मारने की कोशिश करी? यस, इन आवर विलेज व्हेन आई वाज अ सिली यंगस्टर वी ड्रैंक, गैम्बल्ड एंड quarreled badly one day. Why think of it now? Time to sleep, he said, yawning and stretched himself on the pile. तो एस्ट्रोलॉजर बताता है कि हाँ, हमारे गांव में जब मैं एक यंगस्टर था, जब मैं जवान था, तो हम लोग पीते थे, गैम्बल करते थे और झगड़ा करते थे। एक दिन हमारे बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ, लेकिन अब उसके बारे में क्या सोचना, सोने का टाइम है। और ये कहकर वो अपने बिस्तर पर लेट जाता है। ये स्टोरी किसने लिखी है? आर के नारायण ने। नाउ अबाउट द समरी ऑफ द चैप्टर। In an astrologer's day, the protagonist leaves his home haunted by the belief that he committed murder. इस स्टोरी में हमने क्या पढ़ा कि जो एस्ट्रोलॉजर है उसे क्या लगता है, वो ये मानता है कि उसने एक मर्डर कमिट कर दिया था। ठीक है, तो इसीलिए वो अपने विलेज से भाग जाता है। Assuming the guise of an astrologer, he ekes out a living. वो क्या करता है, वो एक एस्ट्रोलॉजर की तरह बन के, एक एस्ट्रोलॉजर का गाइस लेके, उसकी तरह प्रिटेंड करके, अपनी एक्सपीरियंस को बदल के अपने लिए बड़ी मुश्किल से एक लिविंग अर्न कर रहा होता है। Fate twist when he encounters the supposed victim alive. This ironic twist unveils that the man he thought he killed was unharmed. लेकिन एक ट्विस्ट आता है, क्या? जब वो उस विक्टिम से मिलता है, जो वो सोचता है कि उसने सामने वाले इंसान को मार दिया था, जब वो इंसान उसके सामने जिंदा खड़ा हो जाता है, तो उसे क्या लगता है कि हाँ, उसके अंदर कोई गिल्ट नहीं रहा। तो आयरॉनिक ट्विस्ट क्या था? जब वो इंसान बिल्कुल भी अनहार्म्ड उसके सामने आ जाता है। द स्टोरी delves into the theme of redemption, fate and the power of perception. तो ये स्टोरी किसके अराउंड घूमती है, किस थीम के अराउंड? रिडम्पशन के, फेट आपकी डेस्टिनी कैसी है, एंड द पावर ऑफ परसेप्शन. It illustrates the unpredictable nature of destiny and the complexity of human perception. ये स्टोरी हमें क्या बताती है कि आपकी डेस्टिनी जो है ये कितने आराम से बदल सकती है। ठीक है, और ये अनप्रिडिक्टेबल होती है, आप इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। एंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन परसेप्शन, कि हम अगर किसी चीज को परसीव कर रहे हैं, अपने नजरिए से देख रहे हैं, तो उसमें कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज भी हो सकती हैं। नारायण crafts a narrative that challenges assumptions and highlights the potential for redemption even in the face of seemingly insurmountable guilt. तो इस नैरेटिव से क्या हो रहा है? नारायण क्राफ्ट्स अ नैरेटिव दैट चैलेंजेस assumptions, जो कुछ assumptions को चैलेंज करता है और हाईलाइट करता है द पोटेंशियल फॉर रिडम्पशन, कि आपको रिडम्पशन मिल सकता है इवन तब भी जब आप बहुत ज्यादा गिल्ट में हो। Now we came across a few new words in this chapter. Now we'll look at their meanings. Cowrie यानी कि a type of shell. Peaked यानी कि irritated. Cheroot a type of cigarette. Pile a raised platform to sit or lie down. एक जमीन से थोड़ा ऊंचा प्लेटफॉर्म. Guise an external appearance typically concealing the true nature of something. यानी किसी भी चीज की एक्सटर्नल अपीयरेंस, वो बाहर से कैसा दिख रहा है, जिससे उसका जो ट्रू नेचर है वो छुप जाए. एक्स यानी कि मैनेजेस टू मेक अ लिविंग विद ग्रेट डिफिकल्टी, बड़ी मुश्किल से ही आप अपनी लिविंग को अर्न कर पा रहे हो. नाउ वी हैव अ फ्यू क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर. फर्स्ट, fill the correct option in OMR sheet. You have an OMR sheet here and you have to fill the right answer. First, what profession does the protagonist pretend to have in an astrologer's day? इस स्टोरी में जो प्रोटैगनिस्ट है, जो मेन कैरेक्टर है, उसका क्या प्रोफेशन दिखाया है? ही इज एन एस्ट्रोलॉजर, ऑप्शन बी. नेक्स्ट, what theme does the story primarily explore?
ये स्टोरी कौन सी थीम के अराउंड घूम रही थी? अबाउट फेट एंड रिडेम्पशन। नेक्स्ट, what does the protagonist imagine he has done at the beginning of the story? इस चैप्टर में प्रोटैगनिस्ट को क्या लगता है इन द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी कि उसने क्या कर दिया है? दैट ही हैड कमिटेड अ मर्डर। नेक्स्ट, हाउ डज द प्रोटैगनिस्ट मेक अ लिविंग? प्रोटैगनिस्ट अपनी जीवनी, अपनी लिविंग कैसे अर्न करता है? बाय प्रिटेंडिंग टू बी एन एस्ट्रोलॉजर, एक एस्ट्रोलॉजर की तरह प्रिटेंड करके। नेक्स्ट, व्हाट इज द आयरॉनिक ट्विस्ट इन दी स्टोरी? हमने इस स्टोरी में एक ट्विस्ट देखा। वो ट्विस्ट क्या था? द मैन द प्रोटैगनिस्ट थॉट ही किल्ड अपीयर्स अलाइव। कि वो आदमी जिससे प्रोटैगनिस्ट सोच रहा था कि उसने मार दिया है, वो उसके सामने जिंदा आ जाता है। तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, इन एन एस्ट्रोलॉजर्स डे द प्रोटैगनिस्ट assumes the dash of an astrologer। इस चैप्टर में प्रोटैगनिस्ट क्या एज्यूम करता है? एक एस्ट्रोलॉजर का गाइस, यानी अपनी एक्सटर्नल अपीयरेंस को वो एक एस्ट्रोलॉजर में चेंज कर लेता है। द प्रोटैगनिस्ट इमेजिन्स दैट ही हैज कमिटेड, प्रोटैगनिस्ट क्या इमेजिन करता है कि उसने क्या करा है? उसने कोई मर्डर कर दिया है। नेक्स्ट, द स्टोरी एक्सप्लोर्स द थीम्स ऑफ, ये स्टोरी कौन कौन सी थीम्स एक्सप्लोर कर रही है? फेट, रिडेम्पशन एंड द पावर ऑफ परसेप्शन। Next, the ironic twist in the story occurs when the protagonist encounters the man he thought he had dash. Now, अब इसमें जो आयरॉनिक ट्विस्ट आता है स्टोरी में, वो कब आता है? जब वो आदमी जिसे प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि उसने क्या कर दिया है, उसके सामने आ जाता है। वो आयरॉनिक ट्विस्ट तब आता है स्टोरी में जब प्रोटैगनिस्ट उस आदमी से मिलता है जिसको उसने क्या सोचा था कि उसने मार दिया है, killed. Now, all the other questions you will do it yourself so that you can understand this chapter better, and this finishes our chapter. Now for the next lesson, we will continue in our next class. Till then, have a nice day.